Hello everyone. So today we are going to discuss unit 7, that is reading skills. That means कि अगर ਆਪਾਂ रीडिंग कर रहे हैं तो ਸਾਡੇ कोई भी ਆਪਾਂ टेक्स्ट कोई भी चीज़ ਆਪਾਂ अगर पढ़ रहे हैं तो ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ, that we will study in this chapter. So what is reading? Reading is a dynamic process in which the reader interacts with the text to construct meaning. ठीक है, रीडिंग की ਹੁੰਦਾ एक ऐसा प्रोसैस ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੀਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੀਡਿੰਗ। ਕੁਝ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। that is reading is what, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਰੀਡਰ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। Inherent in constructing meaning is a reader's ability to activate prior knowledge, use reading strategies and adapt to the reading situation. That means meaning ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਬੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। that all comes in reading. So valid reading assessments therefore evaluate students' ability to apply their knowledge, skills and strategies to reading situations that are representative of those they encounter in their daily lives. So ਕਹਿੰਦੇ valid reading अगर assessment ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ valid reading ਅਗਰ ਉਸ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ evaluate ਕਰਦੀ ਕਿ student ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ability ਆਪਾਂ evaluate ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ knowledge, ਆਪਣੀ skill, अपनी स्ट्रैटेजीज किवें ओ रीडिंग सिचुएशन विच लगांदा है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट रीडिंग। नैक्सट कम्स रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपां रीडिंग क्यों करते हैं? सो वट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स? इहदे विच 3 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। फर्स्ट आंदा है तुहाडा रीडिंग फॉर लिटरेरी एक्सपीरियंस। दैट मीनस तुसीं कुछ लिटरेचर पढ़ रहे हो, ठीक है, इहदे विच तुहाडे नॉवल्स आ सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, पोएम्स हो सकती हैं, प्लेज हो सकती है, थोड़े एसेज हो सकते हैं। दैट ऑल कम्स इन लिटरेरी एक्सपीरियंस। सो बेसिकली कि पहला ऑब्जेक्टिव आ गया कि आप कुछ लिटरेचर पढ़ रहे हैं, कोई तुसीं चैप्टर बारे नॉलेज लैनी है, कोई पोएम बारे, कोई प्ले बारे, तो आप उहदे वास्ते भी रीडिंग करते हैं। It requires exploration of the human condition and the interplay among events, emotion and possibilities. That means जो human conditions है उन्हें अपा deeply explore करना that means exploration means to deep, ठीक है, that means इहदे च अपा deeply उन्हां दे emotions, उन्हां दी possibilities नू पढ़ पाने आ। It requires knowledge, it also requires knowledge। आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वैसे हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। It involves looking for how author explores or uncovers experience। ये भी चीज़ इन्वॉल्व करती है कि जो ऑथर है या पोएम दा थोड़ा पोइट है उन्हें किवें कोई चीज़ नू एक्सप्लोर किया है, एक्सप्लेन किया है। It requires engaging in vicarious experiences through the text। That means different तुसी experience ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ experience देखते हो, फील करते हो। दूसरा आ गया थोड़ा रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स आप मैगजीन्स वगैरह, न्यूज़पेपर्स वगैरह, आर्टिकल, टेक्स्ट वगैरह कुछ भी अगर पढ़ रहे हैं अपने इन्फॉर्मेशन वास्ते, अपनी नॉलेज वास्ते, सो दैट इज़ योर सेकेंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तुहानू इहदे वास्ते थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, या तुहानू कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन पता होवे जिस चीज़ बारे आप पढ़ रहे हैं, जिवें आप कोई मैगजीन पढ़ ली, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, दैट इज़ योर सेकेंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड आ गया थोड़ा रीडिंग टू परफॉर्म अ टास्क। सो वट इज़ डज इट मीन कि आप कोई भी चीज़ परफॉर्म करनी है। बेस्ट एग्जाम्पल होगी जो आप कुकिंग करते हैं, ठीक है, जिवें आप नाल पढ़ रहे हैं, नाल कुछ समान बना रहे हैं, दैट इज़ रीडिंग टू परफॉर्म अ टास्क। सो दीज आर द बेसिक 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग। थर्ड कम्स कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग। इहदे विच की आंदा कंपोनेंट्स? पहला आ गया तुहाडा रीडिंग स्पीड। दैट मीनस मैं 1 मिनट विच किन्ने वर्ड्स बोल रही हूँ, उन्होंने आपां कहने आ रीडिंग स्पीड। सो फॉर्मूला है वर्ड ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स रेड इंटू 60। ठीक है, जिन्ने वर्ड्स पढ़े होंगे उन्होंने 60 मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेकेंड्स एक्चुअली टेकन टू रीड सच मटीरियल। ठीक है, एग्जाम्पल गिवन है a paragraph contains 120 words। ठीक है, that means total number of words कितने given है 120 and was read carefully in 90 seconds। that means total number of words कितने होंगे तो 120 into 60
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेकेंड्स कितने एक्चुअली आप लेते हैं इनटू 90, दैट इज आप रीडिंग स्पीड अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दूसरा की है अनदर पर्सन हु रीड्स सेम पैराग्राफ रैपिडली, ठीक है, वो फटाफट चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंड कंप्लीट्स द रीडिंग इन 15 सेकेंड्स जिन विच एंड हैज़ रीडिंग स्पीड ऑफ 480 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। दैट मीन्स 120 इंटू 60 डिवाइड बाय एक्चुअली कितना टाइम लेता आप 50 तो आप ओ वर्ड ए लिख देंगे। नेक्स्ट कम्स ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग स्पीड आप वेरीअस काइंड्स ऑफ रीडिंग ਨੂੰ 4 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰੀਡਿੰਗ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰੀਡਿੰਗ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਲੋ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਲੋਐਸਟ ਕਾइंड ऑफ रीडिंग। इन दिस काइंड ऑफ रीडिंग द स्पीड वेरीज बिटवीन ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 50 ਤੋਂ 350 ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਰੀਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਪੂਲਰਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रूफ रीडिंग हो गई, थोड़ी एक्यूरेसी अगर चेक करनी है तो आप केयरफुल रीडिंग करते हैं, आप 1 मिनट सिर्फ 50 to 350 वर्ड्स पढ़ते हैं। दूसरी कैटेगरी आ गई थोड़ी रैपिड रीडिंग, दैट मीन्स ए केयरफुल रीडिंग वाला थोड़ी सी फास्ट है। सो रैपिड रीडिंग मतलब इट इज़ अ सिंपल काइंड ऑफ रीडिंग वेयर द स्पीड विल रेंज फ्रॉम 300 to 600 वर्ड्स। दैट मीन्स स्पीड किमें वेरी कर रही है, 1 मिनट आप 300 तो 600 वर्ड्स पढ़ लेने हैं, ठीक है। दैट इज़ योर रैपिड रीडिंग। थर्ड कम्स योर स्किमिंग। स्किमिंग थोड़ा होर फास्ट आ गया, आप ये 1 मिनट च 1500 वर्ड्स पढ़ लेने हैं, ठीक है। जस्ट आप ये मेन हैड्स देख रहे हैं, जिमें आप न्यूज़पेपर देखिए तो आप क्या करते हैं, मेन हैड्स देख लिए, मेन हैडलाइनस पढ़ लिया, दैट मीनस आप वो स्किमिंग कर रहे हैं। एंड लास्ट आ गया थोड़ा स्कैनिंग, वो सब तो फास्टेस्ट काइंड है रीडिंग दी, बिकॉज ये आप 3000 वर्ड्स पर मिनट पढ़ लेने हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल होगी न्यूज़पेपर आप खोली जैसे आप पिक्चर्स ਨੂੰ देखिए, दैट इज़ योर स्कैनिंग। सो ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग स्पीड साड़ियाँ 4 तरह दियाँ कैटेगरीज बनदियाँ ने रीडिंग दी, ठीक है। फर्स्ट वॉज केयरफुल रीडिंग, सैकेंड योर रैपिड रीडिंग, थर्ड स्किमिंग एंड फोर्थ स्कैनिंग, ठीक है। थोड़ा फर्स्ट पॉइंट सीगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ रीडिंग स्पीड ऊपर, दैट इज़ योर फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स। दूसरा आ गया थोड़ा कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मीनस वट कि आप कोई भी पैसेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो पैसेज में सानू की साडे क्वेश्चन राइज हो रहे तो उसी पैसेज कितना समझ लिया, दैट मीनस असीं रीड अगर कर रहे हैं साडी कितनी अंडरस्टैंडिंग पावर है कि आप वो पैसेज रीड करके समझ रहे हैं। इट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीड मटीरियल, ठीक है। देयर इज मोर और लेस एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग स्पीड एंड अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली कहते उल्टा रिलेशन है, जे अगर साडी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होगी सानू कुछ समझ नहीं आएगा, जिन्नी स्पीड सारी स्लो होएगी सानू उन्ना ही कंसैप्ट समझ आएगा। सो दैट इट मीनस कि जिन्नी आप स्लो पढ़ांगे कॉम्प्रीहेंशन रेट सानू उन्ना ही हायर होएगा, दैट मीनस सानू उन्नी ही चीज़ वध समझ आएगी। द थर्ड कंपोनेंट कम्स रीडिंग एफिशिएंसी, दैट मीनस आप कितना एफिशिएंटली कितना इफेक्टिवली चीज़ नू पढ़ रहे हैं। इसका फॉर्मूला है रीडिंग स्पीड इंटू कॉम्प्रीहेंशन, दैट मीनस फर्स्ट ते सैकेंड पॉइंट मल्टीप्लाई करांगे तो रीडिंग एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है। अगर असी रीडिंग कितनी स्पीड से कर रहे हैं सानू कितना वो समझ आ रहा है, दैट इज़ योर रीडिंग एफिशिएंसी। फोर्थ कम्स रिटेंशन। रिटेंशन मीनस सानू कितनी चीज़ दिमाग में याद है। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉल द रीड मटीरियल आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम। अगर मैं अज मटीरियल कुछ पढ़िया है तो हफ्ते बाद मैनू उहदे विचों कितना क याद आता है, दैट इज़ योर रिटेंशन। आप अपनी सैकेंडरी क्लासेस विच कमर्स बैकग्राउंड आर्ट्स बैकग्राउंड च आप किन्ने सबजैक्ट पढ़े होंगे, ठीक है, जो कि थोड़े अद फर्दर क्लासेस विच आते हैं, ठीक है। सो दैट मीनस अगर आप मैनेजमेंट की गल करिए तो आप बेसिकली आप अकाउंट्स वगैरह में भी पढ़िया हो, ठीक है। सो उस सबजैक्ट बारे सानू अपनी सैकेंडरी क्लासेस कितनी नॉलेज है, दैट इज़ योर रिटेंशन। दैट मीनस साडे दिमाग में वो चीज़ कितनी देर लिए रह रही है थोड़े टाइम बाद, ठीक है। दैट वर द फैक्टर्स कंपोनेंट्स। नेक्स्ट कम्स योर फैक्टर्स अफेक्टिंग रीडिंग स्किल। किहड़े फैक्टर्स है जो मेरी रीडिंग स्किल नू इफेक्ट करते। पहला चीज़ एजुकेशनल बैकग्राउंड। सो जिन्नी मैं एजुकेटेड होवांगी उन्नी ही मैं रीडिंग एफिशिएंटली करूँगी, ठीक है। जिन्ना मैं लिटरेट हाँ, जिन्नी मैं वैल एजुकेटेड पर्सन हाँ, मेरी रीडिंग उन्नी ही इफेक्टिव होएगी। नेक्स्ट आ गया थोड़ा फिजिकल कैपेबिलिटी, ठीक है। अगर कोई पर्सन फिजिकली सेट नहीं है, ठीक है, उन्हें कोई चोट वगैरह लगी है, दैट मीनस वो एफिशिएंटली रीडिंग नहीं कर पाएगा जस्ट बिकॉज उसका ध्यान अपने जिथे उन्हें लगी उत्थे ध्यान जाएगा उसका, ठीक है। सो फिजिकल कैपेबिलिटी इफेक्ट थोड़ी करती है। नेक्स्ट कम्स योर मेंटल कैपेबिलिटी। ऑब्वियसली मेंटल कैपेबिलिटीज़ की है, कोई पर्सन
हायर मैंटल कैपेबिलिटी विल लीड टू अ बेटर रीडिंग एफिशिएंसी एंड रिटेंशन। ठीक है, अगर आप मैंटली साउंड हाँ, ठीक है, इंटैलीजेंट हाँ, तो सानू मैंटल कैपेबिलिटी थोड़ी एफिशिएंसी भी बताएगी, थोड़ी रिटेंशन भी बताएगी। नैक्सट कम्स इंटरस्ट। ओबवियसली जदों तक सानू किसी चीज़ में इंटरस्ट नहीं होएगा उदों तक असीं वो चीज़ सीख नहीं पावांगे। ठीक है, सो इंटरस्ट होना बहुत मैटर करता है। जिन्ना सानू वध तो वध इंटरस्ट होएगा, जिन्ना आप इंटरस्ट लैके कोई चीज़ नूं पढ़ांगे सीखांगे, सानू उन्नी साडी रीडिंग एफिशिएंसी इंक्रीज होएगी। नैक्सट आ गया तुहाडा प्रैक्टिस। व्हाट सेज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जिन्नी आप रीडिंग करांगे, ठीक है, जिन्नी वध तो वध रीडिंग करांगे साडा की है उन्नी चीज़ समझ आएगी, उन्नी साडी रीडिंग इफेक्टिवनेस, उन्नी साडी रीडिंग एफिशिएंट ज़्यादा बनेगी, क्लैरिटी ज़्यादा होएगी, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंक्रीज होएगी। Next comes reading model. PSQ 5 on model. It is very important for 10 marks. कि reading model की हुंदा है PSQ 5 on model stands for the basic steps in learning from reading in an efficient manner। ठीक है, अगर आप रीडिंग ਨੂੰ efficient manner ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਡਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ P stands for purpose, S stands for survey, ठीक है, Q stands for the question and the 5R ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ read selectively, recite, reduce, record, reflect and review। सो पहला आ गया P stands for purpose। what is purpose कि आप रीडिंग क्यों कर रहे हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव की है, लिटरेरी एक्सपीरियंस है या मैं कोई इन्फॉर्मेशन वास्ते कर रही हाँ या मैं कोई टास्क परफॉर्म करना है। सो दैट इज़ योर पर्पस। तुहानू पर्पस क्लीयर होना चाहिए कि फॉर वट पर्पस आई एम डूइंग द रीडिंग टास्क। नैक्सट आ गया तुहाडा सर्वे स्कीम। दैट मीनस थोड़ा मैं की कर रही हाँ, मैं वो चीज़ करनी है, ठीक है, एक स्किम करना है। दैट मीन्स सर्विस स्कीम मीन्स कि मैं वो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करूँगी जो कि मेरे मेन पार्ट्स ने। ठीक है, जो एक ऑब्वियसली एक पैराग्राफ विच सिर्फ सारा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं होंदा और 3 to 4 लाइन्स इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, सो बेसिक जो मेरा फोकस की होएगा वो पीस ऑफ राइटिंग भी होएगा जो कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लांस ओवर द मेन फीचर्स ऑफ द पीस, दैट इज द टाइटल हो गया, हेडिंग्स हो गया, द लेट एंड द समरी, पैराग्राफ्स टू गेट ओवर एन ओवरव्यू ऑफ द पीस। ठीक है, दैट मीनस असीं एक ओवरव्यू लेना है कि उहदे विच गल की कीती गई है, मैं वही जस्ट सर्वे स्किम कर लेना है। स्किम मतलब मैं जस्ट एक मेन ग्लांस मेन टॉपिक नूं पिक आउट करना है। थर्ड कम्स क्वेश्चन। क्यू स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन, दैट मीनस कंपोज क्वेश्चंस दैट यू एम टू आंसर। ठीक है, मैं कि मैनू उस चीज़ बारे प्रायर नॉलेज सीगी टॉपिक दी। ठीक है, जो भी मैं चीज़ पढ़ रही हाँ मैनू कितना समझ आया या मैनू कोई प्रायर नॉलेज सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ठीक है, दैट मीनस एक क्वेश्चन राइज होंदा है। टर्न द फर्स्ट हेडिंग इनटू अ क्वेश्चन टू विच यू विल बी सीकिंग द आंसर यू रीड। ठीक है, जो भी तुहाडा टॉपिक होएगा उन्होंने क्वेश्चन विच कन्वर्ट करो तो देखो कि इस टॉपिक विच मैं की पढ़ना है तो मेरे की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पॉइंट्स कवर होने चाहिए। दैट मीनस जो भी रीडिंग में पढ़नी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ की क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। नैक्सट कम्स 5R। 5R जो फर्स्ट आर आंदा रीड सिलेक्टिवली। दैट मीनस आप हर एक चीज़ नहीं पढ़नी। ठीक है, आप वो मेन चीज़ पढ़नी जिहदे तुहानू इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इंपॉर्टेंट कोई आइडिया मिल रहा है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो जो इन्फॉर्मेशन तुहाडे पर्पस नू कंप्लीट करेगी आप वही चीज़ पढ़नी है। सारा पढ़ांगे सानू कुछ नहीं याद रहेगा। सो रीड सिलेक्टिवली, थोड़ा पढ़ो जो तुहाडे पर्पस नू क्लीयर करे, जो तुहाडे एम नू क्लीयर करे कि तुसी रीडिंग क्यों कर रहे हो, तो जो तुहानू बेसिक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे आप वो चीज़ पढ़नी है। नैक्सट इज रिसाइट। यूजली आप स्कूल में देखते हैं कि आप स्टूडेंट्स नू रिसाइट करवाने हैं। दैट मीनस वो पोइम्स वगैरह बोल रहे। ठीक है, सो आप जिन्ना हो सकता अपना वध तो वध आप रिसाइट करना है ताकि सानू चीज़ों याद रहे। नैक्सट कम्स रिड्यूस रिकॉर्ड। दैट मीनस आप चीज़ नू छोटा करना है तो रिड्यूस करके पढ़ना है। रिड्यूस रिकॉर्ड, ठीक है, छोटा करके उन्होंने मेन पॉइंट्स लिख लो, मेन कीवर्ड्स लिख लो ताकि थानू चीज़ याद रहे। नैक्सट कम्स योर रिफ्लैक्ट। कई बार इदा हो सकता है कि मैं कोई चीज़ नोट की है, ठीक है, वो चीज़ नोट करने तो बाद में उत्थे लिखी हुई है। ठीक है, हुण विद इन 1 वीक और 2 डेज और अ मंथ, ठीक है, मैं चीज़ बारे दोबारा पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो मे बी की है जो मैं चीज़ें लिखिया होंगी मैं की करके इलैबोरेट कर दूंगी, न्यू इन्फॉर्मेशन और ऐड ऑन कर दूंगी। ठीक है, दैट मीन्स मेरी जो अंडरस्टैंडिंग पावर इंक्रीज हो रही है, मेरा मटेरियल इंक्रीज हो रहा है। दैट इज़ कि मैं जो भी चीज़ पढ़ रही हूँ, ठीक है, अगर आज मैं कोई चीज़ पढ़ी है, मैं रिकॉर्ड की है, ठीक है, सो अगर मैं आफ्टर अ वीक, आफ्टर 2 डेज और आफ्टर सो
कुछ देर बाद मैं कुछ चीज़ पढ़ रही हाँ तो अपनी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन जो मैं इलैबोरेट करके होर ऐड ऑन कर देना है, दैट इज़ योर रिफ्लेक्ट। एंड रिव्यू मीन्स अपने नोट्स में बार बार पढ़ते जाओ, ठीक है, देखते जाओ, उन्हें रिव्यू करते जाओ, रिसाइड करते जाओ, ठीक है। कुछ चेंजेस होने चाहिए तो वो चेंजेस जरूर करो सो दैट यू कैन नो कि मैं की चेंजेस करने हैं तो मैनू ये बारे की पता होना चाहिए उस चीज़ जो तुसीं पढ़ी है, ठीक है। अगर तुसीं रोज़ नहीं पढ़ोगे तो तुहानू चीज़ याद नहीं होएगी, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, उन्होंने पढ़ते जरूर जाना आफ्टर सम टाइम। नेक्स्ट, टेक्निक्स फॉर इंप्रूविंग रिटेंशन, दैट मीनस की थोड़ी टेक्निक्स ने अगर मैं कुछ चीज़ याद करनी है, ठीक है, तो मैनू वो केड़ी चीज़ करनी पड़ेगी कि मैनू मेरी टेक्निक की है, मेरी जो रिटेंशन है कुछ चीज़ मैनू है हमेशा याद रहे, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट कम्स यूजिंग मैमरी एड्स। आप की कर सकते हैं एब्रीवेशनस यूज़ कर सकते हैं ताकि मैनू चीज़ याद रहे। जिमें आप कहने 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जिमें प्रोडक्ट हो गया, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। दैट मीनस आप की करना है टेक्निक्स इधर दी यूज़ करनी ने कि शॉर्ट फॉर्म च यूज़ करी तुहानू चीज़ याद रहे, दैट इज़ 4 P's ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। दूसरा आगे आप दूसरा की यूज़ करते हैं स्वॉट एनालिसिस। दैट मीनस स्ट्रेंथ की है थोड़ी, वीकनेस की है, अपॉर्चुनिटीज़ की ने, थ्रेट्स की नहीं, दैट इज़ योर शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्वॉट एनालिसिस। दैट मीनस आप इदा के मैमरी एड्स यूज़ करने ने कि तुहानू वो चीज़ याद रहे। 4 P's याद रखे, दैट मीनस आप मार्केटिंग के 4 P's की गल कर रहे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। इदा ही स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। सो आप इदा के मैमरी एड्स यूज़ करके आप चीज़ याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया डिसाइडिंग प्रायोरिटीज ऑफ रिटेंशन। सो द ह्यूमन माइंड हैज़ द कैपेबिलिटी टू रिटेन वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, एट द सेम टाइम इट इज़ डिफिकल्ट टू रिकॉल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस लेयर्स ऑफ असेस, ठीक है। सो कह रहे कि ह्यूमन माइंड है, ठीक है, वो हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकता। सो आप की करना है, आप वो चीज़ याद करनी है, सानू पता होना चाहिए साडी प्रायोरिटी की है, साडी प्रेफरेंस की है। सो वट यू हैव टू डू इज़ अपनी प्रायोरिटीज़ देखो कि मैं केड़ी प्रायोरिटीज़ ने रिटेंशन दियाँ, वो चीज़ ज़्यादा याद करो तो थोड़ी वही चीज़ दिमाग च रहनगियाँ, ठीक है। तुसीं वो चीज़ को रिटेन कर पाओगे दिमाग से जब तक तुसीं अपनी प्रायोरिटीज़ सिलेक्ट नहीं करोगे, बिकॉज हर चीज़ याद करना, हर चीज़ रिटेन करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सो आप वो चीज़ याद करनियां ने जो कि मेरिया ये प्रायोरिटीज़ ने, ताकि मैं वो मेन चीज़ अपने दिमाग में याद कर पावा। थर्ड आ गया थिंकिंग। जो चीज़ आप बार बार याद करते जाएंगे ऑब्वियसली वो चीज़ सानू हमेशा याद रहेगी। सो इफ द रीडर वांट्स टू रिटेन रीडिंग मटीरियल ही मस्ट थिंक अबाउट इट, और बारे वो सोचे। इफ वन अप्लाइज अ माइंड विद रिगार्ड टू सिग्निफिकेंस ऑफ रीडिंग मटीरियल, इट्स रिलेशनशिप विद वंस नॉलेज, utility for future reference will automatically contribute to its retention। That means कहते जो चीज़ वो याद करना चाहता है उन्होंने सोचे, ठीक है। ऑब्वियसली कहते अगर वो कुछ चीज़ बार बार सोचेगा वो रीडिंग मटीरियल वाल उन्होंने होर सिग्निफिकेंट होर इंपॉर्टेंट बनाएगा। सो वो कह रहे हैं कि ये चीज़ ऑटोमैटिकली जो चीज़ सोची जा रहा है वो ऑटोमैटिकली दिमाग में रह जाएगी। नेक्स्ट आ गया रीएनफोर्सिंग। रीएनफोर्सिंग मीन्स टू कॉन्क्रिटाइज इन द माइंड व्हाट हैज़ बीन रेड एंड लर्नड, ठीक है। कहते अपने दिमाग ते जोर पाओ तो सोचो कि मैं की पढ़िया तो मैं की याद किया है, ठीक है। दैट मीनस रीएनफोर्समेंट, ठीक है। दिस इंप्रूव्स रिटेंशन एबिलिटी, ठीक है। सो तुहाडी रिटेंशन एबिलिटी नू की करेगा, इंप्रूव करेगा। कॉन्क्रिटाइज मीन्स मेक एन आइडिया रियल, ठीक है। सोचो दिमाग में सही चीज़ रियल आइडिया बनाओ तो देखो मैं की चीज़ पढ़ी सी तो मैनू की चीज़ याद होनी चाहिए तो मैनू की चीज़ याद है, ठीक है। दैट मीन्स माइंड पर आप ज़्यादा तो ज़्यादा की करना है, फोर्स लगा के याद करनी है चीज़। सो अ फ्यू टिप्स फॉर रीएनफोर्समेंट की हो सकती फ्यू टिप्स। ब्रीफ नोट शुड बी प्रिपेयर, ठीक है। येस आप छोटे छोटे नोट्स अगर प्रिपेयर कर लिए उन्होंने टाइमली पढ़ते जाइए तो तुहानू बहुत हेल्पफुल हो जाती है, ठीक है। जिमें एग्जाम्स में देखिए अगर आप नोट्स बनाए होंगे है, की पॉइंट्स लिखे होंगे, जस्ट हैव अ रीडिंग ऑफ की पॉइंट्स सानू बहुत हेल्पफुल होंगे है एग्जाम में। इदा ही कह रहे हैं कि आप जो भी नोट्स जो भी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं रीडिंग वह ब्रीफ नोट बना लो। After reading, speaker should speak to someone and explain in its own words what he has learned। कहते पढ़न तो बाद, ठीक है, स्पीकर नू किसी नाल वो शेयर करनी चाहिए चीज़, शेयर किया हुआ एक्सपीरियंस हमेशा याद रह जाता है, ठीक है। सो कहते पढ़न तो बाद स्पीकर नू किसी होर नाल गल करनी चाहिए है तो अपने वर्ड्स चीज़ एक्सप्लेन करनी चाहिए कि उन्हें की पढ़िया। फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रेपिटेटिव इनपुट द मटीरियल्स रेड शुड बी
ਸਪਲੀਮੈਂਟਡ ਬਾਈ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਲੈਕਚਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਟੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। The read information should be related with other material and should not be considered as an end only। ठीक है, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने किसी होर नाल रिलेट करना चाहिए तो उन्होंने एज एंड मटीरियल नहीं मनना चाहिए। अगे तो अगे अगर आप किसी ने कोरिलेट करांगे तो सानू ज़्यादा चीज़ क्लैरिटी होएगी। नैक्सट पॉइंट आ गया तुहाडा टेक्निक फॉर इंप्रूविंग रिटेंशन दा इंश्योरिंग डिटर्मिनेशंस। वी ऑलवेज से वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ठीक है, सो अगर आप ये चीज़ प्रण कर ली है कि आप ये चीज़ करनी ही करनी है, सीखनी ही सीखनी है, तो असी वो कभी भी चीज़ हार नहीं सकते। ठीक है, वो चीज़ आप जरूर सीखांगे चाहे टाइम लगे, बट अगर तुसी कमिटमेंट दी है, डिटर्मिन कर ही लिया, सो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम लर्निंग दैट थिंग। ठीक है, अगर आप ये चीज़ सोच ली है कि आप ये चीज़ करनी है, सो वन डे और द अदर यू विल फाइनली अचीव दैट थिंग। ठीक है, फाइनली तुम गोल को अचीव कर लोगे। ठीक है, अगर तुम चीज़ सोची है कि मेरी रीडिंग अपनी इंप्रूव करनी है, ठीक है, मैंने चीज़ याद रखनी है, अगर तुम डिटरमिन कर लिया, सो दैट विल पॉसिबल, it is always possible to happen. So this is all about this chapter, reading skills. Thank you.